Friends, in the previous video related to restricted stock units or RSUs, we discussed mota what is RSUs, how are they kind of used by the companies to reward their employees, and what are the advantages of it. Now, in this video, let's kind of get into the details associated with that. How do we tackle the tax element and how do we consider it as a part of our personal finance? Before we go ahead, a very quick introduction. My name is CA Puneet Agarwal. I'm the founder of Banyan FA, where we are a one-stop shop for all financial need of people. You may want to follow us for your regular weekly updates on personal finance related topics. So let's talk upon the taxation on RSUs when it comes to India. We'll typically talk about the hassles which come at the time of filing the returns. Now, remember, RSUs in most of the cases are your stock holdings or your shares which you have got under your possession outside India. So this involves a lot of complications associated with specific disclosures in your tax returns, which I have seen in many cases are ignored by people. So what do we need to do? First, whatever are your vested holding, remember unvested की बात नहीं कर रहा हूँ. So if you were given, let's say, a right to 300 shares and of them only 100 shares have been vested, which have become credited in your account. So उन 100 shares की बात कर रहा हूँ. They need to be disclosed in your income tax returns as foreign holdings. Name of the company, company की details, कितना share कितने rate पे आपको मिले थे. Second, ये companies अब आपको ongoing basis पे dividend देती रहेंगी. तो वो dividend income आपके बैंक में नहीं आ रही होगी, बस वहीं आपके stock broking account में credit हो रही होगी. You need to disclose that in your tax returns again. You'll have to apply the relevant foreign currency rate and do that. ठीक है. Third, जो unvested है उसका क्या करें? उसे अभी की डेट में इग्नोर कर सकते हैं. ठीक है. Now, जितने आपके वेस्टिंग हुई है शेयर्स की, इन अदर वर्ड्स जितने शेयर्स अब आपके राइट बन गए हैं इस ईयर, उनका जो फेयर मार्केट वैल्यू है, व्हाट इज फेयर मार्केट वैल्यू, जिस रेट पे जो भी उस समय की स्टॉक प्राइस थी इन द रिस्पेक्टिव कंट्री मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स जितने आपको मिले, वो आपके फॉर्म 16 में परक्विजिट्स की तरह दिखते हैं. सो व्हाट यू नीड टू डू, वो फॉर्म 16 में एक बार दिख गए तो मतलब वो आपकी इनकम है. सो यू विल हैव टू डिस्क्लोज इट अंडर इनकम फ्रॉम अदर्स द हेड सैलरी एंड उसको क्लियरली दिखाना चाहिए कि भैया ये मेरे RSUs मिले थे मुझको. उसको गॉबल अप मत कर दीजिएगा, क्लब मत कीजिएगा इधर उधर में. क्लियरली डिस्क्लोज कीजिए. इट विल हेल्प यू इन फ्यूचर इन केस देयर इज एनी क्वेरीज फ्रॉम द टैक्स डिपार्टमेंट. लेट्स से नाउ इफ यू सेल RSUs, एग्जाम्पल 300 शेयर आपको राइट था, 100 आपको वेस्ट हुए और आपने कहा थोड़े दिन बाद अब मुझको ये शेयर नहीं चाहिए, मुझे पैसे की ज़रूरत है. आपने उसको बेच दिए. बेचने के टाइम पे कैपिटल गेन होएगा जस्ट लाइक एनी अदर शेयर, राइट. नाउ यू हैव टू बी कॉन्शियस अबाउट इट दैट दीज आर ओवरसीज होल्डिंग्स. सो अप टू 3 years में जितना भी कैपिटल गेन है दैट विल बी एडेड टू योर इनकम. अब जो सेल करके कैपिटल गेन हो गया वो आपको कैपिटल गेन की तरह दिखाना है एंड ऑल्सो अप्लाइंग द रेलिवेंट फॉरेन करेंसी रेट्स. अब जो आपकी फॉरेन होल्डिंग्स हैं उस पर थोड़ा थोड़ा टैक्स कट रहा होगा. The term which is used in these countries is called withholding tax. ठीक है, similar to TDS in India. So you would want to claim that tax which has been deducted so that you do not need to pay that tax again in India and you can take credit of it. So then you have to kind of claim that under section 89 अपने tax returns में. तो again, a quick recap. You will have to disclose the number of holdings of your vesting. आपकी dividend income को other sources में दिखाना पड़ेगा. आपको अपने RSUs आपके जितने आपको वेस्ट हुए हैं वो आपके फॉर्म 16 में होंगे, उनको सैलरी में दिखाना पड़ेगा. आपने सेल किया तो उसे कैपिटल गेन में दिखाना पड़ेगा. एंड देन फाइनली आपको यू वुड वांट टू क्लेम दैट टैक्स विच हैज़ बीन डिडक्टिव ओवर देयर बिकॉज आपकी ओवरऑल लाइबिलिटी इंडिया में है. अगर उधर टैक्स कुछ डिडक्ट हुआ है तो उसको यहाँ पर ऑफसेट कीजिए, नहीं तो अननेसेसरी यूल पे डबल टैक्सेस. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक मोर अबाउट द नेक्स्ट स्टेप्स. टैक्स से आगे बढ़ते हैं. टिप्स एंड ट्रिक्स एसोसिएटेड विद पर्सनल फाइनेंस. भाई RSUs हैं, it is money. How do you make use of it for a long-term wealth creation? तो इसमें if you have been allotted the RSUs and you are the employee of the company, you would know better than many that what is a long-term growth trajectory of your company. ठीक है. Now, if you do not think that the company is going to grow much in future, in that circumstances, you might want to sell them on the same day when they have been vested. Why I'm saying that? अगर आपको जिस दिन वेस्ट हुए उस दिन की जो वैल्यू है उसका अमाउंट ऑफ टैक्स तो ऑलरेडी डिडक्ट करके कंपनी ने आपको शेयर्स कम अलॉट करेगी. ठीक है. तो अगर आपकी 100 शेयर्स का राइट बना वो 30 काट लेगी. अगर आप 30% टैक्स स्लैब पे और 70 क्रेडिट करेगी. अब लेट्स से स्टार्टिंग वैल्यू उन 70 शेयर्स की लेट्स से फॉर आर्ग्यूमेंट सेक इज $7,000. अब अगर आप इसको $7,000 को आज की आज ही बेच दोगे तो अब आपको फर्दर टैक्स नहीं पे करना है. लेकिन लेट्स से अब आपने $7,000 को अलॉट हुए, अब आप बेचना चाहते हो, उसकी वैल्यू नीचे आ गई तो अननेसेसरी $7,000 पे तो टैक्स पे कर दिया और घर में $6,900 लेकर आए.
या फिर आपने $7,000 पे टैक्स पे किया और उसकी वैल्यू 7,100 हो गई, तो वो ₹100 का जो गेन है, इफ यू डू नॉट होल्ड इट फॉर 3 years, इट विल बी टैक्स एट योर नॉर्मल टैक्स स्लैब. So in other words, if you are not thinking that it will long term create any value because the company may not be very growth centric, it's better to sell it on the same day when it is vested. If you on the other hand think it's a good company, it should grow, then selling का दिमाग से ख्याल हटा दीजिए एंड उस या फिर एटलीस्ट 3 साल के बाद बेचिएगा हर वेस्टिंग को, राइट? सो दैट इंडिया पर्सपेक्टिव से यू एंजॉय बेटर टैक्स रेट्स रादर देन बीइंग एडेड टू योर इनकम. ठीक है. नाउ वेल्थ क्रिएशन RSU से ट्रिमेंडस हो सकता है इफ यू आर इन अ ग्रोइंग कंपनी. नाउ बट डू नॉट थिंक दैट इट इज आउट ऑफ द ब्लू एनी कोई स्पेशल यूनिक प्रोडक्ट. नो, इट इज जस्ट a stock. It is as if you bought the stock from the stock exchange, and if you think it's going to grow, it will grow like a stock exchange. ठीक है. As the value of a stock price of a company will grow up, the RSU की भी वैल्यू ग्रो होती चली जाएगी, क्योंकि ये आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहेंगे unlike you purchasing them. So what happens is that I've seen many cases where these RSU values run into multi crores because बहुत लॉन्ग टाइम से एक एम्प्लॉयज़ को मिलते जाते हैं, वो उनको बेचते नहीं, वो अक्यूमुलेट होते जाते हैं, स्टॉक प्राइस ऊपर चली जाती है एंड इट काइंड ऑफ हेल्प्स. बट इसके साथ व्हाट हैपन्स इज एक कॉन्सेंट्रेशन रिस्क ऐड होने लग जाती है. थिंक अबाउट, आपके RSUs की वैल्यू इज 90% ऑफ योर ओवरऑल फाइनेंशियल एसेट्स नाउ, और वो भी सिंगल कंपनी के अंदर. सो इट मे start adding a little bit of skewed finances for you. So you have to be then being very careful that how do you balance it out. Either you crop them a little bit, थोड़ा सा बेच दें, या फिर अदर जगह अदर एसेट्स में उसको डाइवर्सिफाई करके you start kind of building on other places. Also, you may also start having a good currency hedge as well. इंडिया में ही कमा रहे हैं, इंडिया में खर्च कर रहे हैं, सब चीज़ इंडिया में है, ये अगर डॉलर में वेस्टेड है तो आपको डॉलर का एडवांटेज मिलता रहेगा. ऑलमोस्ट एवरी ईयर ओवर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम इंडियन रुपी वर्सेस डॉलर का रफली 2 to 3% डेप्रिशिएट करता है. इन अदर वर्ड्स, अगर स्टॉक प्राइस इस आपके RSUs की अगर ₹1 भी ऊपर नहीं जाए, $1 भी ऊपर नहीं जाए, तो जस्ट बिकॉज ऑफ द फॉरेन करेंसी डेप्रिसिएशन इन द पास्ट 2 से 3% इंडियन रुपी पर्सपेक्टिव से आपके RSUs की वैल्यू ऊपर चलती चली जाती है. बट अगर लेट्स से योर RSUs आर ऑफ अ जोग्राफी वेयर द फॉरेन करेंसी इज हैपनिंग उल्टा इन टर्म्स ऑफ वो बार बार टूटता चला जा रहा है उधर का रिस्पेक्टिव करेंसी, तो इन दैट केस यू माइट स्टार्ट लूजिंग वैल्यू एज वेल. सो यू हैव टू ऑल्सो बी माइंडफुल ऑफ द फॉरेन करेंसी रिस्क विच कम्स इन टू दिस पर्टिकुलर एरिया. नेक्स्ट इज, मैनी पीपल थिंक जो अनवेस्टेड RSUs है वो उनका राइट है. नो. So they lack complete liquidity in that part and they are not your right. It may also bind you to that company because कई बार क्या होता है जब वो हर साल वेस्ट होने लग जाते हैं तो अनवेस्टेड भी बढ़ते चले जाते हैं. In that situation you would be kind of holding on to a lot of shares which will be issued to you in the future. So keep an eye out on that particular part. So in summary, RSU can be really wealth creating assets and or an interesting form of compensation. Be mindful of the risk which comes along with it, and be mindful about the tax disclosures which needs to be done. Otherwise, it may create tax issues in future. You like this video? Please do hit the like button and subscribe to our channel. Thank you.